डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। A warm welcome to you, Dr. Garg. धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे, जन धन, आधार और मोबाइल को जोड़ने पर सरकार काफी अधिक ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री जी अक्सर विभिन्न मंचों से जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं। वित्तीय समावेशन और सीधे लोगों के खातों में सरकारी सब्सिडी दिए जाने के लिए जैम के महत्व को आप किस तरह देखते हैं और लोगों को इससे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना को चाहूंगा कि आपने मुझे आमंत्रण किया इस आपके प्रोग्राम पर। जैसे कि आपने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के जोड़ने पर सरकार का बहुत जोर रहा है और इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि समाज के जो सीमांत वर्ग हैं वो लोगों का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में प्रवेश हो सका है। जो अब तक कोई बैंक में नहीं जा सकते थे या लोन नहीं ले पाते थे, वो इसके होते हुए वो वित्तीय प्रणाली में आ सके हैं और उन्हें सब सुविधाएं मिलने का सुयोग मिल पाया है। आधार से सबको एक वित्तीय पता मिला है और इसी से वित्तीय समावेश का लक्ष्य जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस समावेश के लक्ष्य को लेकर आधार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहा है। जो सरकार की कल्याणकारी सेवाएं हैं, वेलफेयर सर्विसेज, उन्हें एक पारदर्शी ढंग से इम्प्लीमेंट करने में बहुत फायदा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के जो करीब 140 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, उनमें से करीब 120 करोड़ बैंक अकाउंट का आधार के साथ जोड़ना पूरा हो गया है और इसी कारण कोई भी, जो मैंने बोला कि वित्तीय पता अब हो गया है, कोई भी आधार के बेसिस पे पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मैंने कहा कल्याणकारी सेवाएं हैं, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी पहल है, मनरेगा है, पेंशन है, पीएम किसान है, इन सभी स्कीमों में डीबीटी के डायरेक्ट माध्यम से लोगों के पास पैसा जा सक रहा है। तो इससे जो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो एक वित्तीय समावेश है वो जनधन, आधार और मोबाइल के जोड़ने से संभव हुआ है और मेरा मानना है कि लोगों का इससे बहुत फायदा हुआ है। इसके साथ साथ जो बचत हुई है लोगों की, सरकार की, वो तो अलग है ही, लेकिन जो फायदा है, कन्वीनियंस है, वो इन तीन चीजों से हो पाया है। Dr. Garg, in the current scenario, the use of digital payment has gone up many-fold. There has been a lot of emphasis on the use of digital payment from the central government's side as well. Would you throw light on how can one transfer money using Aadhaar-enabled payment system, and what are the facilities available to the people regarding this? Yeah, see, the Aadhaar provides a technology platform due to which a number of mechanisms have been developed. They are like the Aadhaar payment bridge or the Aadhaar-enabled payment systems or the BHIM Aadhaar Pay. So these are the technology platforms that exist. But for an individual, I think the easiest method that has now become is through the micro ATMs, which the thousands of banking correspondents or the bank mitras, they are carrying with them to the rural areas. And by use of these micro ATMs and by verification through the thumb impression, by the fingerprint verification, people can withdraw and deposit money using the banking correspondence services across the country, even if a bank branch is not there. I can mention that there are now nearly 29 lakh micro ATMs in the country. And over the past year alone, there have been nearly 400 crore transactions which have happened
using the technology platform of the Aadhaar-enabled payment system. So I think this is the biggest advantage, that a person by using their fingerprints can do banking transactions without the need for literacy or without the need for a banking branch to be there. And it is not only that transactions can happen from the bank account to the customer or the person who has the bank account. You can also do these transactions with a retailer, with if you have gone to a small shop, through the Bhim Aadhaar Pay, through the QR codes, you can also do it. So this has opened up new vistas for usage, and for the customer, the technology platform need not be fully known. All that he or she has to do is use their mobile phone to read the QR code, or use the fingerprint on the micro ATM. So it's simplified to that extent. यानी काफी सरल हो गया है वित्तीय लेन देन। यहाँ पर डॉक्टर गर्ग हम समझना चाहेंगे कि कई बार मन में आशंका हो जाती है आधार की डाटा सिक्योरिटी को लेकर, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि UIDAI किस तरह से आधार डेटा की सुरक्षा का ध्यान रखती है। कुछ समय पहले वर्चुअल आधार नंबर जारी करने की सुविधा शुरू की गई थी, यह किस तरह काम करता है? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा, बिकॉज सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट इसको एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया है सूचना सुरक्षा अधिनियम में। एक महत्वपूर्ण बुनियाद है ये हमारे लिए, और इसकी विभिन्न सुरक्षा उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई कमजोरियां ध्यान में आती है तो एकदम से उसको ठीक किया जाता है, और हमारा मल्टी लेयर सिस्टम है सिक्योरिटी का, सुरक्षा का। तो लोगों को कोई आशंका नहीं रहना चाहिए कि इसमें कोई ब्रीच हो सकता है, क्योंकि जो उत्पाद हम यूज करते हैं, जो यंत्र हम यूज करते हैं, वो इंडिया में सबसे एडवांस्ड है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। तो उसमें कोई किसी को आशंका नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी हमारे जानने में आया है कि लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है अपना आधार नंबर किसी अननोन व्यक्ति जिसका जानकार नहीं है उसको देने में। इसलिए हमने एक ये वर्चुअल आईडी, आभासी आईडी का संकल्पना किया है कि अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते किसी को कोई ट्रांसफर के लिए, पहला तो मैंने बोला जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है उसमें तो आप कर ही सकते हैं, QR कोड है वो भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको अपना आधार नंबर नहीं देना पड़ता। लेकिन तब भी अगर आपको कहीं जरूरत पड़े और आधार नंबर आप देना नहीं चाहते लेकिन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए एक रेजिडेंट केवल अपने मोबाइल से एक एक्सेस कर सकता है, एक मैसेज देके एक वर्चुअल आईडी मिल सकती है उसे, और वो अगर आईडी किसी को दे, और वो आईडी केवल अगर वो बाद में बदलना चाहे वो रेजिडेंट बदल सकता है ट्रांजैक्शन के बाद जी। तो इसलिए आधार उसे नहीं देना पड़ेगा, वर्चुअल आईडी से भी काम कर सकते हैं। So Dr. Garg, apart from what you have mentioned just now, are there other ways also in which you deal with cyber security? As I mentioned, cyber security is of utmost importance to us. We have a multi-layered, robust security setup. We use the latest methodologies. We have both hardware and software that we use, which is extremely secure. We get intelligence feeds from various agencies, both nationally and internationally. And we have a very clear protocols for incident response. So I think security is one thing which we give the highest priority to, and we continue to ensure that people should be able to rest at peace and sleep calmly and without any fears on the security aspect. That's well said. डॉक्टर गर्ग, कई बार लोग अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को, पैन कार्ड को या वित्तीय लेन देन से जुड़ी अन्य सेवा को जोड़ने में हिचकिचाते हैं। उन्हें कई मन में आशंकाएं बनी रहती हैं। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे पहले बोला कि लोगों को इसमें कोई आशंका रहने का कोई कारण नहीं है। यदि आप ये लिंकेज करते हैं, कड़ी में जोड़ते हैं, हम कोई भी विवरण उसका अपने पास नहीं रखते हैं। आधार के पास कोई विवरण नहीं रहता है।
जब भी आप वेरिफिकेशन या सत्यापन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन के बाद हम वो डेटा अपने पास नहीं रखते हैं। और ये जानकारी आपको मैं जानना चाहूंगा सभी श्रोताओं को कि जैसे मैंने पहले कहा, साइबर सिक्योरिटी का हम बहुत ध्यान रखते हैं, प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, और ऐसा कोई हम कारण नहीं देना चाहते कि किसी को इस पे कोई रहना चाहिए कि कोई हम डिटेल्स रिटेन करते हैं। Okay. तो वो बहुत अधिनियम हमारा स्ट्रांग है, उसमें किसी को कोई आशंका होने का कोई कारण नहीं है। Dr. Garg, last question and a brief reply from you on how can people approach UIDAI for Aadhaar card related services like updating of data and other? Yeah. We have a number of methods. You can do it through the portal. You can go online and you can do updation. We have Aadhaar Seva Kendras across the country. The post offices, 1.5 lakh of them, we are enabling them. Many of them have already been done. We have Aadhaar centers in the banks. We have consumer service centers which are enabled for updation and enrollment. So our objective is to ensure that Aadhaar anytime and anywhere, so that you can do your enrollment and updation even sitting in your home or conveniently located centers across. And I would just like to mention one last thing, that we have an helpline number 1947. So in case anyone has any doubt at any time, they just have to ring up 1947 1947 and they will be assisted in every which way they want. Thank you so much, Dr. Garg. Thanks a lot for coming on Market Mantra and giving your valuable inputs along with information to our listeners. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.